welcome back to Messages for You. And if this is the first time you're watching this, then welcome to Messages for You. देख लेते हैं आपके लिए दशहरा के अराउंड आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। और ये टाइमलेस है, अगर आप किसी भी साल के दशहरा के आसपास से देख रहे हैं तो आपके लिए रेजोनेट करेगा। स्पेशल खाना दशहरा से रिलेटेड, मतलब दशहरा के अराउंड अभी व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, आई जस्ट शो द कार्ड्स कंबाइंड क्योंकि लगभग इनका एक ही जैसा मैसेज आ रहा है। सबसे पहला मैसेज तो ये आ रहा है कि कुछ लोगों को आप में से नज़र लगती है, तो हो सकता है कि इस टाइम के अराउंड, रात के टाइम के अराउंड आपको हो सकता है कि नज़र वगैरह लगे या नेगेटिविटी फील हो इन जनरल। और हो सकता है कोई आपको नेगेटिवली मैनिफेस्ट कर रहा हो, और मे बी समबडी who you know you don't want to be in a connection with, and they want to be in a connection with you, and it's a kind of possession kind of energy. It's not love kind of energy. It's more of obsession kind of energy, that they are obsessed with you because they see you as somebody who is who has everything, okay, who is in her power. तो एंड दिस इज़ लाइक इफ आई सेड हर, ऐसा नहीं कि लड़कियों के लिए है, दिस इज जेंडरलेस रीडिंग। अगर आप लड़के हैं आपके ऊपर भी ऐसा हो सकता है कि ऐसी एनर्जी थ्रो करी जा रही हो थ्रू somebody you had been in a connection with some time, this person, okay। तो एंड हो सकता है इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो अभी रिसेंटली या कभी भी डाला हो, एंड दे आर they're not trying to manifest you, but they are doing some shady things which will result into negative consequences, okay। तो उससे आपको नज़र वगैरह लग सकती है। उन्होंने आपको मे बी एक ऐसी सिचुएशन में डाला जिसमें आप एक चॉइस थे उनके लिए, ओके। तो एंड आपको अकेला फील भी कराया होगा मे बी, तो इसी वजह से हो सकता है आप उनसे गुस्सा भी हो। बट ये एक है जो बहुत ही ज़्यादा दिस इज़ वन थिंग कि फेस्टिवल्स के अराउंड अच्छी एनर्जी भी होती है लेकिन नेगेटिव एनर्जी भी इतनी ज़्यादा होती है, इसलिए नेगेटिव एनर्जी से बच के थोड़ा आपको रहना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल आई थिंक। ओके, लेट मी जस्ट सी फ्रॉम अनदर डेक इफ देयर आर एनी मोर मैसेजेस फॉर यू। ओके, सो दिस इज़ असेंशन कार्ड्स डेक। देख लेते हैं इफ़ यू हैव एनी मोर मैसेजेस यू नीड टू गेट अराउंड अबाउट दशहरा 2024। I cannot take so many cards, so I'm just eliminating the ones not revealed. So we have 4 cards reversed and 4 cards upright. Okay, this is an additional message not related to Dashera but related to spiritual persons, especially card readers जिनकी एनर्जी बढ़ती है कार्ड रीडिंग करने से, that you need to do card reading around Dashera especially if some of you have suddenly stopped taking clients around Dashera. You should take up clients and do their readings as much as possible, apart from enjoying the festival. You should not keep your festivity at stake for your work, but you should also take up the appointments because it is going to benefit you monetarily, maybe approximately thrice your regular income from this card reading that you get. So
So this was an additional message, not for everybody obviously. So okay, the upright cards are, first is Veils of Illusion. Now this is related to Saptami, I would say. Yes, something related to Saptami. You know, maybe you have to take care. It can be that something prevalent may have happened on Saptami before this Dashera, or something prevalent may happen around Saptami in next Dashera, that if you are watching this, you know, before Dashera has arrived in any other year apart from 2024. Okay, so it can be related to something related to the form of goddess that is worshipped on that day, and the message related to that form. It can be anything. Okay, so this is related to Saptami. Second is Lord Kuthumi. This is okay, this is, I think, for some of the artists, for some of the people who make idols. अगर आप मूर्ति बनाते हैं तो भी आपके लिए ये है कि अगर आपने अचानक से मूर्ति बनाने का अपॉइंटमेंट लेना बंद कर दिया है तो आपको वो नहीं करना है. ओके, बिकॉज़ आपको इस टाइम के अराउंड आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. ओके, मे भी हो सकता है दशहरा से कुछ एक दिन पहले या दशहरा के दिन आपको बहुत सारे अर्जेंट इमीडिएट लाइक उसी दिन पे डिलीवर करने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए कुछ बहुत सारे ऑर्डर्स आए. सो आप जितना कर सकते हैं उस समय आप करिएगा, बिकॉज़ उससे आपको एक दिन में बहुत ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट होगा. थर्ड इज़ दिस कार्ड थॉट. कुछ ऐसा आपकी लाइफ में मे बी रिलेटेड टू दिस मनी एस्पेक्ट और सम अदर एस्पेक्ट ऐसा होने वाला है कि अगर अभी आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो सारी चीज़ें एक साथ हो जाने वाले हैं, एकदम अरेंज्ड हो जाने वाली हैं आपकी लाइफ में. एंड और आपको ऐसा लगेगा कि अब फाइनली आपकी लाइफ ऑन ट्रैक है, मतलब कि अब सब सही चल रहा है आपकी लाइफ में. ठीक है. चौथा ये कार्ड है नेचर का. इसमें नवमी का दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है. नवमी का दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. उसमें आपको बाहर जाना है नेचर में, और हो सकता है कि अगर आप लोग कन्या पूजन करते हैं तो अगर हो सके तो जो कन्याएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो कि अक्सर आपकी सोसाइटी में तो नहीं होंगी, लेकिन हो सकता है पार्क के आसपास उनका घर हो, जो उतनी वेल ऑफ नहीं है कि उनको अक्सर कन्या पूजन में बुलाया जाता हो, उन लोगों को अगर आप कन्या पूजन कराते हैं तो इससे आपका प्रोटेक्शन, आपकी फैमिली और आपसे रिलेटेड बढ़ेगा. एंड आपकी भी फ्रीक्वेंसी बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, आपके घर की वाइब बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और जो भी नेगेटिविटी है वो सब प्योरीफाई हो जाएगी. कोई हीलिंग की ज़रूरत है तो वो भी हील हो जाएगा. और हो सकता है कि उसके बाद आप कहीं जाने का ट्रिप भी प्लान करें, जो कि बहुत टाइम से पोस्टपोन हो रहा हो या मिस हो रहा हो आपसे. तो आपको क्या करना है कि अष्टमी नवमी वाले दिन जो है, जो वो लोग कर सकते हैं ये, आपको कोशिश करनी है कि अगर आपको कन्याएं अपने सोसाइटी में, अपने आसपास नहीं मिलती हैं, अगर आप कन्या पूजन करते हैं, तो आप उन लोगों के पास जाइए जिनके घर में बेटियां हैं पर अक्सर उनको नहीं बुलाया जाता है क्योंकि वो वेल ऑफ सोसाइटी से नहीं बिलोंग करती हैं. ठीक है. तो और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने मतलब के हिसाब से उनसे मन से, श्रद्धा से, उनकी जैसे देवी की पूजा की जाती है वैसे करेंगे तो आपके घर में सही में प्रोटेक्शन आएगा. आपके घर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत प्योरीफाई हो जाएगी. और आपके घर में अगर कोई बीमार है तो वो भी ठीक हो जाएगा. अगर बहुत टाइम से बीमार है, किसी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा, तो आप एक तरीके से ये ट्राई करके देखिए, हो सकता है वो ठीक हो जाएंगे. ठीक है.
फिर है आपका एमेथिस्ट स्कल रिवर्स। आपको जो नहीं करना है, पहली चीज़ उसमें ये है कि आपको इस समय पे किसी को ज्ञान नहीं बांटना है, ठीक है। और आपको, अगर आपने कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का नया कोर्स स्टार्ट करने का शुरू किया है, पढ़ाना या फिर पढ़ना, अभी आप वो मत करिए। अगर आपने कोई नया क्रिस्टल बाय किया है या आप स्कल से रिलेटेड, कंकाल वगैरह से रिलेटेड कोई भी ड्रेस पहनते हैं या कोई भी लॉकेट वगैरह पहनते हैं, तो वो आप मत पहनिए। कम से कम दशहरा के भी 2 दिन बाद तक आपको ये नहीं करना है, ठीक है। और अभी आपको गिफ्ट्स वगैरह भी नहीं देने हैं, ना लेने हैं, ठीक है। दूसरा आपका कार्ड है बुद्ध इन रिवर्स। तो इसमें है कि अभी आपको अगर कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है तो आपको चुप नहीं बैठना है। आपको गलत इंसान के साथ हमदर्दी नहीं दिखानी है कि किसी ने गलत किया है तो आप उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें। आपको ये नहीं करना है, गलत मतलब गलत, ठीक है। ताकि आप भी मतलब, और आपको मैंने फिर से आपको कहा कि आपको ज्ञान नहीं बांटना है अभी किसी को, ठीक है। और आपको चीज़ों को उसी तरीके से देखने की ज़रूरत है जैसी वो हैं। आपको उसमें एडिड चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है कि अपनी तरफ से आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो इसने इसलिए किया होगा क्योंकि ऐसा ऐसा हो जाता है। नहीं, आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चीज़ों को उसकी फेस वैल्यू पे लीजिए। अगर कोई चीज़ लाल रंग की है तो वो लाल रंग की है। आप उसको ये मत कहिए कि नहीं वो लाल रंग की नहीं, वो तो किसी दूसरे शेड की भी तो हो सकती है। लाल मतलब लाल, ठीक है। और आपको किसी को भी ना कुछ बुरा बोलना है, ना कुछ बुरा करना है। अगर आप लोग नॉनवेज खाते हैं तो कम से कम 12वें दिन तक, दशहरा के 2 दिन बाद तक मत खाइएगा। इससे आपके घर में सेफ्टी थोड़ी बढ़ जाएगी। और अगर आपके घर में कोई पेट है और आपने कभी उनसे कोई बहुत प्रेम नहीं दिखाया है, तो आपको उनकी थोड़ी सेवा करने की ज़रूरत है। और उनके साथ आप सेफ़ फील करिए, उनको अपने साथ सेफ़ फील कराइए। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एयर इन रिवर्स। इस टाइम के अराउंड अगर कुछ आप में से मैनिफेस्टेशन करते हैं या किसी भी तरीके का कुछ, अगर आप, मुझे नहीं पता आप लोग करते हैं कि नहीं, अगर आप ट्राई कर रहे हैं टोटका या ब्लैक मैजिक या वाइट मैजिक या कोई भी ऐसा मैजिक टाइप का चीज़, इस समय पे मत करिए, ठीक है। इस समय पे वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। अगर आपसे कुछ गलत हो गया तो नेगेटिव कर्म का बहुत नेगेटिव आपको कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ जाएगा। इसलिए अगर आपको, ख़ासतौर से अगर आपको पता नहीं है कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है, ख़ासतौर से इंटरनेट से कोई भी चीज़ लेके आप फॉलो मत करना शुरू कर दीजिएगा। और कोई चीज़ अगर आपको यूनिक लग रही है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये तो सही होगा, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, ठीक है। कई बार चीज़ें अलग लगती हैं, शुरू में अच्छी लगती हैं, फिर बाद में पता चलता है वो अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से किसी भी चीज़ को फॉलो करना है। सिर्फ किसी के कह देने पे, कोई वीडियो अच्छा लग जाने पे आपको कोई चीज़ फॉलो नहीं करनी है। और आपको जो है, अगर आप स्मोक करते हैं, आपको स्मोक नहीं करना है कम से कम 12वें दिन तक, यानी कि विजयदशमी के 2 दिन बाद तक, ठीक है। और अगर आपकी हैबिट है कि आप कहीं भी कूड़ा करकट फेंक देते हैं, तो वो भी आपको नहीं करना है। और अगर आप फूल तोड़ते हैं तो आपको कुछ दिन फूल तोड़ना नहीं है। फूल अगर आपको इकट्ठे भी करने हैं तो वो फूल उठाइए जो कि पत्तों वगैरह पे गिरे रहते हैं अपने आप टूट के। अगर आपको चढ़ाने भी हैं तो आप तोड़ के मत डालिए, वो डालिए जो कि अपने आप टूट के गिर जाते हैं, पत्तों पे रहते हैं, उनको लीजिए, धोइए और उनको चढ़ाइए, तोड़िए मत।
उसके बाद आपका लास्ट कार्ड है आइसिस इन रिवर्स। आपको अपनी तरफ से स्पेशली मुझे आ रहा है पेमेंट इनिशिएट नहीं करना है 12वें दिन तक, दशहरा के 2 दिन बाद तक, ठीक है। 13वें दिन से आप करना शुरू कर दीजिए, पता नहीं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी, आप देख लीजिएगा जैसे आपकी सिचुएशन है उस हिसाब से आप रेजोनेट करिए, ठीक है, आपसे रेजोनेट होगा तो लेकिन आपको 12वें दिन तक कम से कम अपनी तरफ से किसी को पेमेंट भेजनी नहीं है, ठीक है। कम से कम अपने अकाउंट से तो नहीं भेजनी है, जो आपके नाम से अकाउंट होगा, आपके नाम से जो अकाउंट है उससे आपको पेमेंट नहीं भेजनी है 12वें दिन तक। और आपको पास्ट लाइफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं इन 12 दिनों में मत करिए प्लीज़, 12वें दिन तक मत करिए। और किसी भी फीमेल की डिसरिस्पेक्ट मत करिएगा, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, कोई भी जेंडर हो आप, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती हैं, टाइमलेस भी होती हैं ये। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, अर्जेंट है थोड़ा किसी के लिए, कि अगर आप किसी फ़ीमेल की, स्पेशली कोई मैरिड इंसान है जो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है, फॉर द मेल्स, आपको इस समय तो आप कम से कम मत ही कुछ उल्टा सीधा बोलिएगा, मजाक में भी नहीं, क्योंकि उसका बहुत बुरा कर्म आपको लग सकता है और उसका फल आपको बुरा भोगना पड़ सकता है, तो मत करिएगा ऐसा कुछ। और ज़्यादा बहादुरी दिखाने के लिए आप ऐसे लोगों की हेल्प मत करिएगा जो आपको पता है कि जिनका इंटेंशन किसी चीज़ को लेके अच्छा नहीं है, ठीक है, या फिर आपको किसी पर डाउट हो फिर भी आप उनकी हेल्प कर रहे हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए, अपनी बहादुरी दिखाने के लिए किसी की हेल्प मत करिएगा। हेल्प करनी है तो जेन्युइन फीलिंग से करिएगा। हर कोई जो आपको अप्रोच करेगा उसकी एनर्जी प्योर नहीं होगी, तो हर किसी से इन्फ्लुएंस मत हो जाइएगा। और हर इन्फ्लुएंसर को, अगर आप सोशल मीडिया पे, अगेन मैं कह रही हूँ कि हैं या फिर बहुत ज़्यादा सब कुछ सबकी बात सुन लेते हैं, समझ जाते हैं, मान लेते हैं, तो हर इन्फ्लुएंसर की बात को फॉलो आपको नहीं करना है, ठीक है।